آمین. ایک دفعہ میں پڑھ دیتا ہوں. ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے اور کلام یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی اس کی وجہ آگے لکھی ہے اور وہ یہ ہے اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. پچھلے دنوں میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی, شاید آپ کو یاد ہے یا نہیں. کلام میں جب ہم پیدائش کا ذکر چھیڑتے ہیں, پڑھتے ہیں, سنتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو وہاں پر ایک بات لکھی ہے کہ گہراؤں کے اوپر گہراؤں کے اوپر گہراؤں کے اوپر اور خدا کی روح کہاں پر ہے؟ پانی کی سطح نیچے ہوتی ہے, وہاں پر خدا کا روح کیا کر رہا ہے اور اس کے اوپر کیا ہے؟ اندھیرا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ کیوں لکھا ہے کہ گہراؤں کے اوپر اندھیرا, حالانکہ گہراؤں کے نیچے اندھیرا ہونا چاہیے. ایسے ہی دیکھیں, جیسے یہ ہے, اس کے نیچے میرا ہاتھ اوپر ہے تو یہ روشنی ہے, لیکن یہ نیچے کروں گا تو اندھیرا تو نیچے ہونا چاہیے. لیکن یہ کیا بات ہے کہ گہراؤں کے اوپر اندھیرا. یہ ہے کہ آپ دیکھیں, جیسے یہ لائٹ ہے, اس طرف منہ کروں گا تو میرا ایک سایہ, جیسے یہ دیکھیں میرا ہاتھ نظر آ رہا ہے یا ادھر دیکھ لیں تو یہ سایہ جو ہے وہ کس طرف ہے؟ نیچے. میں کھڑا ہوں, روشنی پیچھے ہے اور اندھیرا آگے. تو اگر میں اس طرف چہرہ کروں تو میرا سایہ کہاں ہوگا؟ پیچھے ہوگا. اگر میں اس طرف کروں تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں, اگر میرا فیس روشنی کی طرف ہوگا تو سایہ پیچھے ہو جائے گا, اور اگر میں ادھر ہو جاؤں تو پھر آگے ہو جائے گا. میں آپ کو بتاؤں, جب تک آپ تاریکی کی طرف, اپنے سائے کی طرف اور ان چیزوں کی طرف دیکھتے رہیں گے, آپ کا فیس ان کی طرف رہے گا. لیکن جب آپ کا چہرہ نور کی طرف ہوگا تو وہ سب چیزیں آپ کے پیچھے ہو جائیں گی. آمین. سب چیزیں کدھر چلی جائیں گی؟ مسئلہ یہ ہے, ہم پچھلے سال جب سے پیدا ہوئے ہیں ہم ادھر کر کے منہ چل رہے ہیں, ہر چیز ہمارے آگے ہے اور ہم اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. لیکن اگر ہمارا فیس نور کی طرف, اور نور کس کو کہا گیا ہے؟ خدا کو, یسوع مسیح کو. آمین. اگر نور کی طرف ہمارا فیس ہوتا تو سب چیزیں ہمارے پیچھے ہوتی. آمین. اس لیے لکھا ہے کہ نور تاریکی میں چمکتا ہے اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا. کیوں اوپر اندھیرا؟ کیونکہ نور نیچے ہے. لکھا ہے روح خداوند کا کام جو مشق کر رہا ہے گہراؤں کے نیچے, انڈر دا شیڈو, تاریکی کے نیچے, گہراؤں کے نیچے. کیوں؟ اس وجہ سے چیزیں پیدا ہونا شروع ہوئی. اگر نور اوپر ہوتا, تاریکی نیچے ہوتی تو کبھی بھی اندر کام نہ ہوتا. کیوں بھلا؟ آپ دیکھیں, جب تک آپ اپنے گھروں کے اندر لائٹ نہ جلا لیں یا اندھیرے کی جگہ پر آپ لائٹ نہ جلا لیں تو کیا ہوگا؟ اگر کنواں ہو تو کنویں کے اندر بالکل نیچے اگر روشنی ہو تو کیا سب کچھ نظر آئے گا؟
نظر آئے گا؟ بھائی ظاہری سی بات ہے، اگر گہرائی ہے اور سب سے نیچے لائٹ ہے تو سب کچھ نظر آئے گا. اس لیے آپ اس میں اترنے میں گریز نہیں کریں، آپ ڈریں گے نہیں، کیونکہ آپ کو نظر آئے گا کہ نیچے ہے کیا. اور اگر اوپر روشنی ہو اور اندر اندھیرا ہو، آپ اتریں گے؟ کیوں نہیں اتریں گے؟ کیونکہ آپ کو ڈر لگے گا کہ شاید کوئی خطرناک چیز نہ ہو، یا کوئی ایسی مہلک وبا نہ ہو جو آپ کو موت میں اتار دے. لیکن اگر سب کچھ نظر آ رہا ہے تو آپ نیچے اتر جائیں. اس لیے لکھا ہے گہراؤں کے اوپر اندھیرا لیکن نیچے نور ضرور ہے. آپ کی زندگیوں کے اندر نور موجود ہے، خدا کا روح موجود ہے. لیکن آپ اندازہ لگائیں، ابلیس اٹیک کرتا ہے آپ کے مائنڈ پر. کیا کرتا ہے؟ آپ کے ذہن پہ، مائنڈ پہ اٹیک کرتا ہے. ابلیس کو اختیار ہے کہ وہ آپ کے ذہنوں کو مبتلا کر سکے، ڈسٹریکٹ کر سکے، لیکن وہ آپ کے دل میں نہیں اتر سکتا کیونکہ وہاں پر نور ہے. لکھا ہے خدا کا روح کہاں پر بسا ہوا ہے؟ ہمارے دلوں میں بسا ہوا ہے. یس، وہ مقدس کے اندر ہے. پاک روح کہاں پر ہے؟ اور میں آپ کو بتاؤں، وداؤٹ ہولی اسپرٹ آپ یسوع پر ایمان بھی نہیں لا سکتے. پاک روح کے بغیر آپ دعا بھی نہیں کر سکتے. پاک روح کے بغیر آپ ایمان رکھ ہی نہیں سکتے کہ وہ خدا کا بیٹا. اس کا مطلب ہے یہ سائن ہے کہ خدا کا روح اندر ہے. آمین. کہاں پر ہے؟ آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں، کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ شرک ہے؟ آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں کیا کہہ سکتے ہیں کہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح نہیں ہے؟ خدا نے، جیسے ہمارے پڑوسی کیا کہتے ہیں، خدا نے کوئی بیٹا نہیں جنا، نہ اس کی کوئی ماں ہے، نہ کچھ اس کی بیوی ہے. ہمیں پتا ہے کہ یہ جسم کی سوچوں سے اور خیالات سے، یہ ادراک سے پرے ہے. یہ ہولی اسپرٹ کی وجہ سے. آپ ایمان لائے ہیں پاک روح کی وجہ سے. مریم ایمان نہیں لائی تھی. مریم ایمان نہیں. اسے کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ کیسے ایمان لے آئی؟ ہولی اسپرٹ کی پاک روح کی وجہ سے وہ ایمان لے آئی کہ ایسا ہو سکتا ہے. اور آپ سب بھی، میں آپ کو بائبل سے پروف دے رہا ہوں، آپ سب ایمان کس وجہ سے لائے ہیں؟ پاک روح کی وجہ سے. اس کا مطلب کہ آپ کے اندر پاک روح ایگزسٹ کرتا ہے، رہتا ہے پاک روح. لیکن مسئلہ کہاں پر ہے؟ مسئلہ ذہن پہ. کیونکہ تاریکی کہاں پر ہے؟ اندر نہیں ہے، تاریکی باہر ہے، آؤٹ سائڈ. آپ کا اندر گہراؤ ہے. اسی لیے داؤد کہتا ہے گہراؤ کو پکارتا ہے. یعنی کہ وہ کہہ رہا ہے میرا انر، میری سول، میرا اندر جو گہراؤ ہے وہ اس خدا کو پکارتا ہے جو آلریڈی میری طرح گہراؤ. آمین. آپ کا اندر گہراؤ ہے اور اس پر خدا کا روح جنبش کرتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے اوپر اندھیرا. کیا ہے؟ اس کی وجہ سے کیونکہ ذہن پر اندھیرا ہے اور ذہن میدان جنگ ہے. کبھی ایسا لکھا ہے بائبل میں؟ کبھی نہیں ایسا لکھا کہ آپ کے دل میں جنگ ہوتی. بائبل یہ کہے گی کہ آپ کے مائنڈ میں جو ہے وہ جنگ ہوتی. اس لیے آج ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم ذہن کو نیا کیسے بنا سکتے. آمین. ذہن کو کیسے؟ کیونکہ جب اٹیک ذہن پر ہو رہا ہے تو ہمیں ذہن پر کام کرنا ہوگا. کہاں پہ کام کرنا ہوگا؟ اگر آپ دل پر لگے رہیں گے، او میرے دل میں بدی ہے، او بھائی دلا سے پاک روح ہے. کیا ہے؟ آپ پر لکھا ہے ابلیس دشمن جو بھائیوں پر کیا کرتا ہے؟ الزام لگاتا ہے. اور آپ اس کی آواز سنتے. جب الزام دیتا جاتا ہے تو ایک دم سے ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اس کو قبول کرنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوتا. ابلیس، پولس رسول اس کے بارے میں کہتا ہے، کہتے ہیں کہ برے دنوں میں اپنے ہتھیار باندھ لو
दुश्मन के तीरों का क्या कर सको, मुकाबला कर। दुश्मन के जलते हुए तीरों का जो वो तुम पर फेंक रहा है, जो वो तुम्हारे जहनों पर फेंक रहा है, उसका तुम क्या कर सको, मुकाबला कर सको। ये आपने मुझे याद दिलाना है, मुकाबला कर सको। आमीन। सो इससे पहले मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूं। हमने इमसाल की किताब मुकद्दस सुलेमान की लिखी हुई मिस्र, उसमें ये हमने पढ़ा है कि लिखा है खुदावन खुदा ने इंतजाम आलम के शुरू में, उसकी इब्तिदा में जब शुरू किया गया कि खुदा ने कहा आओ हम दुनिया को बनाएं, आओ हम इंसान को बनाएं, उसके पीछे सब कुछ करने से पहले कलाम में लिखा है कि हिकमत कहती है, कलाम कहता है, यस्सु कहता है कि खुदा ने मुझे इस्तेमाल किया। क्या किया? आए मेरे साथ दोबारा पढ़े। हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी। खुदावंद ने इंतजाम आलम के हाँ। शुरू में अपनी कदीमी संतों से पहले मुझे पैदा किया, मुझे पैदा किया। और फिर दोबारा जरा पढ़े, खुदावन ने इंतजाम आलम के शुरू में हाँ। अपनी कदीमी संतों से पहले मुझे पैदा किया। अब यहाँ पर ये मैं आपको बताऊं, यहाँ पर एक जो ट्रांसलेशन है उसमें कमजोरी है। ये कुछ यूं है, खुदावन ने इंतजाम आलम का मतलब है जब खुदा आलमों को बनाने के लिए इंतजाम कर रहा था। क्या कर रहा था? जैसे आप 7 पोर्शन बनाते हैं तो आप पहले क्या करते हैं? आप पहले मशवरा करते हैं आपस में। जी जी। सो आप बिल्डिंग बनाने के लिए क्या करते हैं? कलाम को यूज करते हैं। क्या करते हैं? कलाम को यूज करते हैं। आप 3 बैठे हैं, अगर हम 3 बैठे हैं तो हम क्या करेंगे? अंकल जी मेरे पास ये प्लान है कि ऐसे ऐसे चीजें बनाई जाए। मैंने नक्शा दे दिया, उस पे काम करने वाले अंकल हैं कि मैं इस पर जो है वो चीजों को डेवलप करना शुरू करूं। माइंड मेरा है, हाथ इनके इस्तेमाल होंगे और जोर इनका होगा। ये ट्रिनिटी है। क्या है? ये ट्रिनिटी है। खुदा बाप माइंड है, उसका सोर्स जो है उसका कलमा है, और उसके पीछे जो ताकत है वो रूहुल कुद्स। हमें सो लिखा है जब इंसान को भी बनाने की बारी आई तो लिखा है आओ हम क्या करें? इंसान को बनाए। इंसान को। खुदा जब भी कुछ शुरू करता है तो ट्रिनिटी आपस में एक टेबल टॉक होती है जिसमें वो एक दूसरे के साथ मशवरा करते हैं। आमीन। मसला आज हमारे घरों का ये है कि हम टेबल टॉक नहीं करते, हम मशवरा नहीं करते, हम आपस में डिस्कस नहीं करते, डिस्कशन नहीं करते। इसलिए कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। अगर जहन को आप यहां से हटा दें तो जिस्म अपनी मर्जी से चलना शुरू हो जाए। टांग कहेगी नहीं 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 मैंने नहीं उधर जाना, एक कहेगी नहीं नहीं मैंने इधर जाना है, एक कहेगी मैं इधर जाऊं। आप मोबाइल का मदरबोर्ड उस पर अटैक कर दें तो चीजें खुद ब खुद चलना शुरू हो जाती। पता जी मोबाइल खराब हो जाता है तो की होता है? तुसी एक दबा रहे हो तो दबिया की जा रहा है, 9 दबाया जा रहा है, 8 दबिया जा रहा है। तुसी कह रहे हो भाई मैं दबाना 1 चाह रहा हूं ते ओ 9, उसका मतलब है मदरबोर्ड में अटैक हुआ। इसलिए इब्लीस सबसे पहले अटैक आपके माइंड पे करता है, आपके घरों पर करता है, जो आपका सरबराह है उस पर अटैक करता है ताकि मशीन ही खराब हो, सिलसिला खराब हो जाए। आप अगर आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया है, डिस्ट्रॉय हो गया है, खराब हो गया है, तो आपका जिस्म ऑटोमेटिकली ये गलत काम करना शुरू हो जाए। और इब्लीस ने अटैक कहां पर किया? हवा के जहन पर कब किया था? खुदा ने उनको डायरेक्शन दे दी थी कि तुमने ये नहीं खाना, बाकी 5 ऊपर नहीं खाओ। सो
इब्लीस ने क्या किया, उसके माइंड पर अटैक किया। कलाम उसके अंदर मौजूद है, उस पर अटैक नहीं किया। जो नूर अंदर है उस पर अटैक नहीं किया, उसके माइंड पर अटैक किया। लिखा है नूर तारीकी में चमकता, लेकिन तारीकी ने उसे कबूल ना किया। तारीकी उसको कबूल नहीं कर सकती। इब्लीस यीशु पर अटैक नहीं कर सकता। जिस्मानी तौर पर आप देखते हैं कि उसको, लेकिन इन डिविनिटी अगर वो अलूहियत में है तो वो उस पर अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि अगर अटैक करेगा तो मर जाएगा। हाँ, प्लस प्लस के साथ जुड़, माइनस माइनस के साथ जुड़, वो जुड़ सकता है। माइनस माइनस के साथ जुड़ सकता है, प्लस प्लस नहीं। प्लस नहीं जुड़ सकता। लेकिन इसीलिए इब्लीस खुदा के सामने खड़ा भी नहीं रह सकता। इसलिए जो आपके अंदर कलाम है उस पर वो अटैक नहीं करेगा, बल्कि आपके माइंड को खराब करेगा। अपना कलाम आपके अंदर डालेगा, आपके जहनों पर तारीकी डालेगा, ताकि आप तारीकी को कबूल कर रहे हो, नूर को रिजेक्ट कर रहे हो। हाँ, तो इसलिए वो आपके माइंड पर अटैक करता है। सो खुदा ने क्या किया, शुरू में जब सब कुछ बनाना था तो किसको इस्तेमाल किया, कलमे को, कलाम को इस्तेमाल किया। आमीन। आमीन। आज मैं आपको यह कहना चाहता हूं, अगर आप अपनी जिंदगियों को बनाना चाहते हैं, अपने घरों को तरतीब देना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को चाहते हैं कि ये बेहतरीन हालत में आ जाए, तो खुदा के कलमे को इस्तेमाल करें। हालेलुया। आमीन। आमीन। कलमे को इस्तेमाल करेंगे तो आपकी डायरेक्शन दुरुस्त होगी। कलमे को इस्तेमाल में लाएंगे तो आपकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। कलमे को इस्तेमाल करेंगे तो यह खूबसूरत जिंदगी बनेगी। और कलमे को इस्तेमाल करेंगे तो कोई भी जो बाहर से कलाम इस्तेमाल करेगा वो आप पर कामयाब ना होगा। पता क्यों? तुसी मैं दसो, एक तरफ तुसी बाइबल पढ़ा दे तो दूजी तरफ कोई ताड़े बारे च कुछ होर पढ़ा दे, ते ताकतवर केड़ा है? खुदा दा कलाम ताकतवर है या दूजा? खुदा का कलाम। सम टाइम यही कहना वो साढ़े ते किसी ने कुछ कर दिता है। की कीता है? कुछ कर दिया है। मेरे पीछे कोई पढ़ाइयां कर रहा है, वो जो ही नहीं पढ़ाई करनी तो पीछे तो किसी ने करनी है। हाँ जी भाई, जो ही है नहीं पढ़ना तो फिर किसी ने तो कुछ पढ़ना ही है। तो फिर कहते ने पास साहब मेरे ते दुआ करो, मेरे ते किसी ने कुछ करता है। वो भाई ताड़े ते की कर देता है, उन्हें भी कलाम ही पढ़िया ना, तो तू भी अपना कलाम पढ़ना शुरू कर दो, आप ठीक हो जी। वाह, वो भी नहीं पढ़ना ते आके कहना पास साहब कुछ कर दो, भाई यही की करिए, तू कोई खाली रखया नहीं। कुछ की कर दो। नहीं पास साहब वो चलो बाद दियां गल्लां ने, मैं हाथ रखो, जो भी करना है मैनू सही करो। भाई सही किंज करिए? खुदा भी अगर दुनिया नू सही करना चाहता है तो अपने बेटे नू इस्तेमाल करता है, हालेलुया। अपने कलाम नू इस्तेमाल करता है। तो जो असीं कलाम नू रिजेक्ट कर देंगे तो फिर खुदा भी कुछ नहीं कर सकता। मैं ये बाइबल से बरबला आपको कह रहा हूं कि खुदा खुद फरमा रहा है कि उसने दुनिया को बनाने से पहले, सब कुछ बनाने से पहले अपने कलाम को इस्तेमाल किया। आमीन। ऐसा हो नहीं सकता कि आप दुआ करते रहें और कलाम को इस्तेमाल ना करें और खुदा आपको बना दे। खुदा जब भी आपको बनाएगा उसका सोर्स खुदा का कलाम है। कुछ कहते हैं नहीं मैनू कलाम की जरूरत नहीं, मेरी तो खुद डायरेक्ट खुदा ना कलाम है। की होंदिया ने भाई, मेरी खुद डायरेक्ट खुदा दे नाल गल्लां होंदियां। ओ भाई, कलाम में लिखा है, पौलुस रसूल कहते हैं, इस अंजील के अलावा अगर कोई फरिश्ता भी आसमान से बोले तो वो मलाउन ठहरे। ऐसा ही है, लिखा है फरिश्ता भी अगर हमें इसके अलावा कोई और कलाम सुनाए तो वो मालूम हो, वो लानती ठहरे। आज बहुत सारे कहते हैं जी नहीं मेरे साथ खुदा ने कलाम किया, लेकिन वो इसके साथ मुताबिकत ही नहीं रखता। मैं आपको बरमला कहना चाहता हूं, और भी अंजीलें थी जो लिखी गई। इन चार के अलावा बहुत सारी अंजीलें क्या थी? बहुत सारी अंजीलें और भी लिखी गई थी।
लेकिन उनको जला दिया गया। क्यों? क्योंकि वो इनके साथ लिखी, इनके साथ मुताबिकत नहीं नहीं रखती। रखती थी। देखो, गवाही उसकी कबूल होती है जिसने आंखों से देखा है। और जब भी अंजील लिखने वाला है, मुकद्दस यूहन्ना कहता है हम इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमने उसको हाथों से छुआ, फिर हमने उसका तजर्बा किया, हमने आंखों से देखा, छुआ, और इसके गवाह है। हालेलुया। जो गवाह है, जिसने देखा है, वो कलाम जो है वो ऑथेंटिक है, अदरवाइज सब कुछ रिजेक्ट है। इसलिए बाकी सारी अंजीलें हटा दी गई, और ये क्योंकि ये यस्सु के खास उसके साथ रहने वाले थे। मत्ती, मरकस, लूका, और ये लूका की बात मैं बाद में करूंगा क्योंकि ये बाद में इसने यस्सु को कबूल किया। लेकिन मरकुस, यूहन्ना और मत्ती ये यस्सु के साथ थे, और जब लूका ने लिखा तो लूका इनके साथ था। इसलिए कलाम वो एक्सेप्ट किया जा सकता है जिसने आंखों से देखा। आज तो आप जज के पास भी चले जाएं तो वो किसकी गवाही कबूल करे? जो आंखों देखा, चश्मदीद, जो चश्मदीद गवाह है। जिसने आंखों से देखा। उन्हें कहा भाई नहीं तू वेख्या है, फिर असी तेरी गवाही कबूल। तो भाई खुदा कैसे कबूल कर? और जब आपके कलाम के बाहर कोई कलाम कर रहा है, चाहे वो कोई खादिम है, चाहे वो कोई फरिश्ता है, चाहे वो कोई भी है, अगर वो इसके साथ मुताबिकत नहीं रखता तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। हवा को यही करना चाहिए। हालेलुया। हवा को क्या करना चाहिए? यही करना चाहिए। वो अपनी किताब खोल लेती, कहती आया जो ये कलाम कर रहा है ये मेरे कलाम से मैच कर रहा है। ऐसा करना चाहिए था कि नहीं? कर लेती। आज हम क्यों धोखा खा रहे हैं? आज हम क्यों गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं? क्यों हम मार खा रहे हैं? क्यों हमारे घरों में बरकत नहीं आ रही? क्यों हमारे बच्चों में बरकत नहीं आ रही? क्योंकि हमारे जहन में बहुत सारा कलाम बोया जाता है जो इसके मुताबिक नहीं है। सो खुदा अपने कलाम से इस साल आपको तरतीब देना चाहता है। क्या करना चाहता है? तरतीब देना चाहता है ताकि आपकी जिंदगी बेहतर हो जाए, ताकि आप जिंदगी की वो नेमतें, बरकतें पाना शुरू करें जो उसने आपके लिए रखी। आए मेरे साथ अगली आयत पढ़ेंगे, 23वीं। हाँ जी। मैं अज़ल से यानी इब्तिदा ही से मुकर्रर हुई, इससे पहले के जमीन थी। इससे पहले के जमीन थी। और आगे वही बात 24वीं आयत पढ़ें जरा। मैं उस वक्त पैदा हुई जब गहराव ना थे, जब पानी से भरे हुए चश्मे भी ना थे। आमीन। सो यहाँ पर देखें, आगे पूरी डिटेल है, आप जरूर इसको जाके पढ़िएगा। हर चीज बनाने से पहले खुदा ने अपने कलाम को इस्तेमाल किया, और इसीलिए मुकद्दस यूहन्ना भी अपनी अंजील का आगाज कुछ इस तरह करता है। वो कहता है इब्तिदा में कलाम, और कलाम खुदा के और कलाम खुदा था। ये कलाम खुदा है। इसलिए इब्लीस नहीं चाहता कि हम बाइबल को पढ़ें, क्योंकि जब आप बाइबल को पढ़ेंगे इसका मतलब आप खुदा को पढ़ रहे हैं, आप खुदा को जान रहे हैं, आप खुदा को पूरा जहन, उसका चलना फिरना, उसकी तमाम एक्टिविटीज को आप पढ़ेंगे। और इब्लीस नहीं चाहता कि आप खुदा को स्टडी करें, क्योंकि लिखा है जो मुझे जान जाते हैं वो जिंदगी को पाते हैं। आमीन। आमीन। लिखा है मैं तुझे इसलिए छुड़ाऊंगा क्योंकि तूने मुझे जाना है। क्या है? आज खुदा को जानते ही नहीं तो फिर खुदा क्यों छुड़ाए? पता ही नहीं खुदा की कर सकते। और हम मुश्किल हालात में पता क्या कहते हैं? खुदावंद अगर तू कर सकता है, अगर तू, यानी पता नहीं है, पता ही नहीं क्यों कर सकता। जब खुदावंद ने एक शख्स को जिसका हाथ सूखा हुआ था उसको कहा, उसने यीशु को कहा मालिक, रबी, अगर तू कर सकता है, अगर तू कर सकता है तो मुझ पर रहम कर। यानी फिर यीशु ने उसके छोटे जहन को देखा, लेकिन खुदा यीशु मसीह लिखा है कि यीशु ने कहा, कलाम में लिखा है वो रहम करना पसंद करता है।
लिखा है वो अक्सर तर्स से भर जाता। उन्हें क्या होने दा सुक्का इन्हों मैं की कमा कि मैं कर सकता, चल मैं इन्हों कह देना कि भाई मैं कर सकता। हालेलुया। सो लिखा है जो खुदा को जानते हैं, लिखा है तूने मेरा नाम पहचाना है इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। हालेलुया। आज क्यों लोग छूट नहीं रहे? क्योंकि वो खुदा को नहीं जानते। नाम का क्या मतलब है? खुदावन ने कहा अगर तू मेरा नाम पहचानता, तूने मेरा नाम पहचाना है, इसका क्या मतलब है कि जब आप कहेंगे यहोवा यरी, तो इसका क्या मतलब है? खुदा मुहैया करने वाला। जब आप कहेंगे यहोवा राफा, तो इसका मतलब है खुदा शिफा देने वाला, खुदावंद रूई, और इस तरह के मुख्तलिफ नाम जब आप उनको स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा खुदा क्या कर सकता है। आमीन। सो आज से आपने कलाम की स्टडी करना शुरू कर देना। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अगले साल भी आप रोते रहेंगे और दांत पीसते रहेंगे और कहेंगे खुदावंद ऐ साल भी सानू कख नहीं मिला, खुदावंद मेरी जिंदगी त्याती भी नहीं बदली। क्योंकि भाई मैंने पहले बताया है, आप मुझे अभी आपने रिपीट करना है, खुदा ने सब चीजें कैसे बनाई? तो आप हकीकत को जाने, अपने आप को जरा हुलारा दें, आप झंझोड़े आप अपने आप, वो छटको जरा अपने आप। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਅਗਰ ਬਿੱਲੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਛੰਡਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਇੰਜੀ ਛੰਡੋ ਜ਼ਰਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਓ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਅਗਰ ਕਰੇਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਬਣਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਮੀਨ। तो अगर तुसी कलाम ना पढ़िया, अच्छा मुझे याद आ गया जो हमने डिवाइसेस दी थी, वो पढ़ रहे हैं कि नहीं, सुन रहे हैं कि नहीं? डिवाइसा वाले मेरा ख्याल है कोई भी नहीं आया, ਉਹ ਰੇ ਘਰ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦਿਓ। तो कितने महीने हो गए मेरा ख्याल? एक महीना तकरीबन हो गया। अच्छा ओके। सो हम वो भी कलेक्ट करेंगे और जिनके पास नहीं है फिर हम उसको दे देंगे। हमें सो अगर ऊपर आए मेरे साथ, थोड़ा सा मेरे साथ पढ़ेंगे 11वीं आयत। क्योंकि हिकमत मरजान से अफजल है और सब मरगूब चीजों में बेनज़ीर मुझ हिकमत ने होशियारी को अपना मस्कन बनाया है, वो इल्म और तमीज को पालती हूँ। खुदावन का खौफ बदी से अदावत है, गरूर और घमंड और बुरी राह और कच गो मुंह से मुझे नफरत है। तुसी पूछते ना खुदावन मैनू दसो कि मैं अपने आप नू की करा, ऐ मेरे नाल पढ़ियो जरा। इल्म तमीज को पालती हूँ, और उसके बाद आपने ये पढ़ना है खुदावन का खौफ बदी से अदावत है, गरूर और घमंड और बुरी राह और कच को मुंह से मुझे नफरत है। आज से आपने ये डिटेल अपने घरों में जाकर इसको रट लेना। किन किन चीजों से खुदा को नफरत है? गरूर से, यस, और लिखा है कच को मुंह से। इधरों गाल चुकी थी उधर दस चढ़ी है, सुकून ही नहीं आता जब तक भाई जी दस ना दो। फिर अंकल जी मैं सिर्फ दस रहा किसी का ना तुसी ना दस ओ भाई तुसी अंकल नु भी क्यों दसी? क्यों क्यों पच नहीं ना रही है हां ते अंकल जी तुसी अगे ना दस। मैं दसना नहीं सी लेकिन मैं चलो तां दस भाई जी, तो दसना नहीं सी ते ना दसो। और यहाँ पर ये डिटेल लिख लें, गरूर से खुदा को नफरत है, घमंड और बुरी राह और कज को मुंह से। और यहाँ पर लिखा है जो खुदावन का खौफ रखते हैं वो बदी से अदावत रखते हैं। आज पता कि सारे लोग कहते हैं मैं खुदावन से बहुत डरता हूं, मैं खुदा तो बहुत डरना भाई, मैं तो दे घरों भी ना अगों घर दे कोलों खुद चर्च दे कोलों नंगा तो मेरा जिस्म थरथराना शुरू होता।
اور میں اودے بندیاں کو بہت ڈرنا، سارا کچھ کرنا۔ آئے میرے ساتھ ایک حوالہ نکال، یہودا کا خط، یہودا کا عام خط، اس کا ایک ہی باب ہے، اور اس میں شاید وہ یعقوب کے خط میں ہے، اس کو میں دوبارہ آپ کے لیے جو ہے وہ بیان کروں گا۔ لکھا ہے کہ اگر تو کہتا ہے کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں نا، اگر کہتا ہے کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں تو شیاطین بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی خدا تو ڈرتے ہیں، لیکن کی کرتے ہیں؟ گناہ تے گناہ کری، کیا کرتے ہیں؟ گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں خداوند سے ہم ڈرتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے رہتے ہیں کہ میں خدا سے ڈرتا ہوں، لیکن بدی پر بدی کرتے جاتے ہیں۔ سو آپ نے خدا کے جیسے کام کرنا ہے۔ یسوع نے کہا کہ ویسے پاک بنو جیسے کہ تمہارا آسمانی باپ پاک ہے۔ اور وہ کیسے بن سکتے ہیں؟ جیسے خدا عمل کرتا ہے ہم نے ویسے عمل کرنا ہے، اور خداوند کے کلام کو پڑھنا شروع کریں، کیونکہ یہ کلام آپ کو بدل دے گا۔ اور لکھا ہے خداوند کا خوف علم کا، خداوند کا خوف علم کا، بلند آواز سے کہیں، خداوند کا خوف علم کا، اور علم کیا ہے؟ آج جب ہم نئے سال کا آغاز کر رہے ہیں، آج پہلا دن ہے، میں نے اس لیے آپ کو یہ بتایا کہ خدا نے اپنی ابتدا جو زمین پر شروع کی اور لشکر کو بنانے میں شروع کی، سب کچھ کو بنانے میں، اس کی ابتدا میں خدا نے کلمے کو استعمال کیا۔ آمین۔ بہت سارے ذہن ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہن اسی یسوع نے استعمال کرنا، اے کی بار صاحب کہہ رہے اے تے کفر ہے، اسی یسوع نے کہیں استعمال کرنا۔ او بھائی، یسوع نے خود کہا تھا، یسوع نے کہا کہ یہ خون بدن تم نے کھانا ہے، اس کو استعمال کرنا ہے، مجھے کھا جاؤ۔ یسوع کی کنڈیشن مجھے کھا جاؤ۔ میں نے ایک بڑی دیر پہلے میں نے ایک ٹاپک میں نے چرچ میں جو ہے وہ بیان کیا تھا، آؤ یسوع کو کھا جائیں۔ کیا؟ پتہ کیوں؟ میں تھوڑا سا ڈیٹیل آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم یسوع کو کیوں کھائیں، اور میں اس بارے میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ اگلے سنڈے ہم نے یسوع کے خون اور بدن میں